ناظرین السلام علیکم، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ خدمات پر فوت ہونے والے برقی ملازمین کے لیے حادثاتی انشورنس اسکیم کا نائب وزیر اعلیٰ نے کیا آغاز، کہا ملک کی واحد ریاست کا تاریخی کارنامہ۔ مانسون مقررہ وقت سے پہلے تلنگانہ پہنچ گیا، پیر کو پہلی بارش، جنوب مغربی مانسون سرگرم۔ وقف قانون کے خلاف محبوب نگر میں احتجاجی جلسے عام، خراب موسم کے باوجود ہزاروں افراد کی شرکت۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا ابو طالب رحمانی، سی ایم ابراہیم، احمد بلالہ اور دیگر کے خطابات۔ جگدیش مارکیٹ میں ایپل موبائل فون کے نقلی ایکسیسریز کا ریکٹ بے نقاب، 4 افراد گرفتار، 1 کروڑ 1 لاکھ روپے مالیت کی اشیاء ضبط۔ اور یتیم و یسیر لڑکیوں کا جنسی استحصال شاہگنج میں واقعہ، قاتی خاندان کا سماجی و معاشی بائیکاٹ کرنے جمعیت القریش کا اعلان۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ام کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے پرجا بھون میں منعقدہ تقریب میں برقی ملازمین کے انشورنس اسکیم کا آغاز کیا۔
मुलाजमीन की बहबूद के सिलसिले में 1 करोड़ रुपए हादसाती इंश्योरेंस की इस स्कीम का आगाज किया गया है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, बरकी के मुलाजमीन को 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस फराहम करना मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड है। माजी में किसी हुकूमत ने मजदूरों के लिए ऐसी कोशिश नहीं की। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद ही रियासत में यह इक़दाम किया गया। इस स्कीम से बरकी कंपनी में काम करने वाले कारकुनों में एतमाद का जज्बा पैदा होगा। नायब वजीर आला ने इस मौके पर खिदमात की अंजामदही के दौरान फौत होने वाले मुलाजिम नरेश के अफराद खानदान में 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस का चेक हवाले किया। इस प्रोग्राम में हुकूमत के मुशीर नरेंद्र रेड्डी, बरकी और बैंक के ओहदेदारों ने शिरकत की। मानसून वक्त से पहले दाखिल हो गया है। जुनूब मगरबी मानसून जो 3 दिन पहले केरला पहुंच गया था, तेजी के साथ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों तक पहुंच गया है। दक्कन के इलाके में मानसून आमतौर पर जून के पहले हफ्ते में पहुंचता है, लेकिन इस मरतबा 12 दिन पहले ये तेलंगाना में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से तेलंगाना के साथ साथ जुनूब के इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है। पीर को शहर में सुबह मतला अबारालूद रहा। चंद मुकामात पर हल्की और कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। दर्जे हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। वस्ती व जुनूबी तेलंगाना के अजला में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। अजला रंगारेड्डी, विकाराबाद, मुत्तहदा महबूबनगर, मेडचल, मेदक, नलगोंडा, सूर्यापेट, खम्मम, भोंगिरी के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। केरला के अलावा जज़ीरा लक्षद्वीप, गोवा, महाराष्ट्र, बशमुल मुंबई, कर्नाटक, बिलखुसूस बेंगलुरु में मानसून की बारिश जारी है। जुनूब मगरबी मानसून से मशरकी साहिल पट्टी की रियासतों बशमुल उड़ीसा, मगरबी बंगाल में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। शुमाल मशरकी रियासतों से भी बारिश की इत्तला है। तेलंगाना में मानसून का पहला असर जुमा 30 में तक रहेगा। 2 दिन के वक्फे से जून के पहले हफ्ते से बाकायदा मानसून के जारी रहने का इम्कान है। साबिक वजीर और बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव के वजीर आला और कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदें जारी हैं। पीर को केटीआर ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने आबपाशी, तकर्रुरात और फंड्स की इजराई के काम किए थे। अब कांग्रेस हुकूमत सिर्फ इल्जामात, सौदेबाजी और अतियात की बात कर रही है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ठेकेदारों के साथ मामलत दिल्ली में पार्टी आलाकमान को चंदा देने तक महदूद होकर रह गई है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से लड़कियों को कल्याणा लक्ष्मी के तहत सोना देने के ऐलान और वादे पर तंज करते हुए केटीआर ने कहा, रेवंत रेड्डी नकली सोना भी नहीं देंगे। उधर बीआरएस के लीडर और साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने सूर्यापेट के आत्माकूर में पानी से मुतासरा फसलों का मायना किया। किसानों ने फसल को हुए नुकसान पर मायूसी का इजहार करते हुए मसले की यकसुई पर जोर दिया। इस मौके पर साबिक वजीर ने कहा, तेलंगाना में अंधेर नगरी चौपट रात चल रहा है। वजीर आला और वज़रा हर किसी के इस्तेसाल में मुलविस है। आईकेपी के मराकिस में पौधे उग रहे हैं। 60 दिनों तक धान नहीं खरीदी गई और अब बारिश की वजह से धान को नुकसान हुआ है। हुकूमत को किसानों की मुश्किलात की कोई फिक्र नहीं है। किसान दलालों के हाथों फंस चुके हैं। कांग्रेस हुकूमत ने तमाम शोबेजात बिलखुसूस किसानों के साथ नाइंसाफी की है। रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। बीआरएस के एक और साबिक वजीर निरंजन रेड्डी ने सवाल किया कि यासंगी मौसम के खत्म होने और मानसून का आगाज होने के बावजूद अनाज क्यों नहीं खरीदा गया। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर ने कहा, अमंगल में धान खरीदने के लिए एहतजाज करने वाले किसानों के साथ धक्कमपेल जुल्म किया गया। हुकूमत को किसानों से गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। रियासत भर के किसान अनाज की फरोख्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत किसानों को हरासा कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि अनाज की खरीदारी फौरी मुकम्मल की जाए, फी कुंटल 500 रुपए बोनस दिया जाए। रियासती वजीर सीतक्का ने पीर को तेलंगाना पंचायत फेडरेशन एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ज़िला मसाइल की यकसुई पर तबादले ख्याल किया गया। फेडरेशन से 10,000 सेक्रेटरीज मुल्हका बताए गए हैं। मसाइल की यकसुई के सिलसिले में भी जरूरी हिदायत दी गई।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान निजामुद्दीन ने इंकशाफ किया कि केसीआर का खानदान 2000 करोड़ रुपए के असासों के कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रहा है। मीडिया से बात करते हुए निजामुद्दीन ने कहा, बीआरएस सियासी पार्टी नहीं रही बल्कि खानदानी रसाकशी और जायदाद को बचाने वाली पार्टी बन चुकी है। केटीआर, हरीश राव और कविता के दरमियान लड़ाई 2000 करोड़ रुपए के असासों के लिए चल रही है। आदादोशुमार पेश करते हुए निजामुद्दीन ने कहा, दौलत जमा करने के लिए 10 सालों में इस खानदान ने बीआरएस पार्टी को खानदानी कारोबार में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान की सरगर्मियों को दुनिया से वाकिफ कराने के लिए हिंदुस्तान के वफूद मुख्तलिफ ममालिक में सरगर्म हैं। एक वफ्द बहरीन के दौरे के बाद कुवैत पहुंच गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस वफ्द का हिस्सा हैं। बीजेपी के एमपी बी पांडा की क़यादत में वफ्द ने कुवैत के नायब वज़ीर आज़म और मुमलिकती वज़ीर बराए काबीना उमूर शुरैदा अब्दुल्ला सादी अल मुशारची से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की सरहद से जारी सरगर्मियों से उन्हें वाकिफ करा गया। वफ्द ने कुवैत की ग्रैंड मस्जिद का भी मुशाहिदा किया। बीजेपी के साबिक़ रुकन मुकर्रना सी रामचंद्र राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर किसानों को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस के दौर हुकूमत में अब तक 420 किसान फौत हो चुके हैं। किसान परेशान हैं, हुकूमत किसानों की जिंदगियों से खेल रही है। फसल का बीमा नहीं करा गया। हमने पहले ही कहा था कि मानसून पहले आएगा, किसानों की धान खरीद ली जाए, लेकिन 30 लाख मेट्रिक टन अनाज अभी तक नहीं खरीदा गया। उनका कहना था कि जिस किसी हुकूमत ने किसानों को धोखा दिया वो दोबारा इख्तिदार पर नहीं आएगी। वफ़ कानून 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम महबूबनगर में मुनक्किदा जलसिया में मौसम की खराबी के बावजूद हज़ारों अफराद ने शिरकत की और इस सयाह कानून के खिलाफ अपनी जिदोजहद को जारी रखने का अहद किया। सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सदारत की। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सीएम इब्राहिम, मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला, कोलकाता से आए आलिम दीन मौलाना अबू तालिब रहमानी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम, मशाइखीन इस्लाम व दीगर अहम शख्सियतों ने जलसे से खिताब किया। सीएम इब्राहिम ने कहा, मुसलमानों के ईमानी जज्बे को दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। हुकूमत न सिर्फ मुसलमान बल्कि मुल्क के 75% तबक़ात की भी मुखालिफ है। वफ़ का तहफ़्फ़ुज़, दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़, इस जिद्दोजहद में दस्तूर पर ईखान रखने वाले मुल्क के तमाम शहरी शामिल हैं। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा, मुसलमानों को कमज़ोर करने और उनकी मौक़ूफ़ा अराज़ियात को छीन लेने के लिए ये सयाह कानून लाया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में सदियों से वक्फ का नज़्म रहा। बरतानवी दौर हुकूमत आज़ादी के बाद भी गुज़िश्ता 7 दहाइयों से ये सिलसिला जारी है, लेकिन दस्तूर को पामाल करने वाली बीजेपी हुकूमत इसे ख़त्म करने के दर पे हैं। मुसलमान और सेकुलर अवाम हुकूमत के अज़ाम को कामयाब होने नहीं देंगे। जलसे के दौरान वक्फे से बारिश होने लगी, लेकिन इस सूरत हाल के बावजूद बॉयज़ जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर मुनक्किदा जलसिया में हज़ारों अफराद मुकम्मल नज़्म के साथ तकारीर की समाअत करते रहे। मौलाना अब्दुल मुजीब क़ासमी की क़िराअत कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ। मौलाना अब्दुल बसीर अशादी और सैयद साबिर हुसैन खादरी ने हदियानात पेश किया। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, मौलाना अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी, डॉक्टर खालिद मुबश्शिरुल ज़फ़र, साबिक़ रुकन असम्बली कर्नूल अब्दुल हफीज़ खां, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तदी, डॉक्टर मतीन क़ादरी, मौलाना ग़ियास अहमद रशादी, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना फ़ज़लुल्लाह क़ादरी, मौलाना फ़ायज़ अहमद जामई और दूसरों ने खिताब किया। मौलाना नईम कौसर रशादी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। वक्फ कोई आज का कानून नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर बादशाहत थी, वक्फ था, राजा रजवाड़े थे, वक्फ था, ब्रिटिश हुकूमत थी, वक्फ था, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, वक्फ था। आज 65 साल के हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये बीजेपी सरकार जब से हुकूमत में आई है, इनका मकसद है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को पसपा किया जाए, इनको दबाया जाए। हिंदुस्तान के अंदर पहली मस्जिद 629 के अंदर बनी, उस जमाने से वक्फ है। आज लोग मंसूबा खाली कानून बनाने का नहीं है, मंसूबा यह है कि किस तरीके से यह वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए, वक्फ के जायदादों को खींचा जाए। इसके बाद एक सिविल कोड आएगा, पहले बाबरी मस्जिद आई, फिर अब वक्फ बोर्ड आ रहा, फिर एक सिविल कोड आएगा, बहुत सारी चीजें आते जाएंगे। तो बहरहाल मकसद यह है कि इनको रोकना जरूरी है, चाहे वो
عملی میدان میں ہو, احتجاج کے ذریعے ہو. مسلم پرسنل لا بورڈ قانونی میدان میں بھی لڑائی لڑ رہا ہے, زمینی میدان پر بھی احتجاج کر رہا ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم نہیں رہیں گے یہاں پر اسٹیج پر, جو ہے کوئی بھی کل کو باقی نہیں رہے گا, آپ نہیں رہے گے, لیکن یہ ہماری جائیدادیں جو ہمارے آباء و اجداد نے اوقاف کے نام کے اوپر ہمارے مساجد کے لیے, ہمارے مدرسوں کے لیے ہے, اس کو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس کا تحفظ کر جانا ہماری تو ذمہ داری ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کا. جبھی بھی اس سلسلے میں جو بھی کال ہوگا انشاءاللہ آپ اور ہم سب مل کر جو پرسنل لا بورڈ کہے گا اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ. نظام آباد میں لڑکیوں کے لیے اردو میڈیم جونیئر کالج کا نئے تعلیمی سال سے آغاز ہوگا. حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے اس سلسلے میں متعلقہ محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا. سیکریٹریٹ میں منعقدہ اس اجلاس میں نظام آباد کے ملے پلی میں واقع تعلیمی ادارے کو لڑکیوں کے لیے اردو میڈیم جونیئر کالج کی حیثیت سے فروغ دینے کا فیصلہ کیا گیا. 17 سال پہلے اس عمارت کو 30 لاکھ روپے کی لاگت سے محکمہ عمارات و شوارع نے تعمیر کیا تھا تاکہ یہاں اردو میڈیم جونیئر کالج شروع کیا جا سکے. حکومت کے مشیر نے بتایا کہ BRS حکومت نے گزشتہ 10 سال کے دوران اسے نظر انداز کیا تھا, جس کی وجہ سے یہ عمارت کوڑے دان بن گئی تھی. اب مزید 38 لاکھ روپے اس عمارت کی تزئین نو کے لیے منظور کیے گئے ہیں. اس کام کی تکمیل کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں یہاں لڑکیوں کے لیے اردو میڈیم جونیئر کالج کا آغاز ہوگا. جائزہ اجلاس میں صدرنشین ریاستی اردو اکیڈمی, اسپیشل سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود یاسمین بادشاہ, ڈپٹی ڈائریکٹر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ لکشمنا ریڈی کے علاوہ دوسرے محکمہ جات کے عہدیدار شریک تھے. حج ہاؤس سے عازمین حج کے 3 قافلے پیر کے دن ارض مقدس کے لیے روانہ ہو گئے. سعودی عرب روانہ ہونے والے قافلوں میں 25، 26 اور 27واں قافلہ شامل ہے. اس طرح تاحال حج کے لیے 8,427 عازمین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. پیر کے دن 26ویں قافلے کو اسپیکر اسمبلی جی پرساد کمار نے جھنڈی دکھائی. اس موقع پر صدرنشین حج کمیٹی خسرو پاشا افضل بیابانی کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور قائد مقرنہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی کی رہنمائی میں رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے محکمہ آبرسانی و سیوریج کے منیجنگ ڈائریکٹر اشوک ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی باقیات اور کچرے کی نکاسی کے لیے توجہ دلائی. اس سلسلے میں مرزا رحمت بیگ نے اشوک ریڈی کو صدر مجلس کا ایک مکتوب حوالے کیا. صدر مجلس کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی قربانی کے جانوروں کی باقیات و دوسری صاف صفائی کے کاموں کے لیے حیدرآباد، سکندرآباد، رنگا ریڈی ضلع میں سرکاری محکمہ جات سے نمائندگی کی جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے عید الاضحیٰ کے 3 دنوں تک سرکاری محکمہ جات کی ٹیمیں صفائی کے کاموں میں متحرک رہتی ہیں. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور قائد مقرنہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے محکمہ آبرسانی کے جنرل مینیجر کرشنا، DGM مصطفیٰ اور GHMC کے ڈپٹی کمشنر وینکٹیشورلو کے ہمراہ پیدل دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا. پینے کے پانی کی پائپ لائن، سیوریج لائن کے کاموں میں نقائص کی وجہ سے عوام کو مسائل کا سامنا کرنا تھا. ان کے دورے میں اچیریڈی نگر، جہنما، نواب صاحب کنٹے کے علاقے جات شامل تھے. اس موقع پر سابق رکن بلدیہ اسد بیگ کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین بھی موجود تھے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ یاقوت پورے میں اسپورٹس کے فروغ کے لیے اقدامات جاری ہیں. پیر کو رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے سنتوش نگر اور ان بازار ڈویژن میں سمر کوچنگ کیمپس کے لیے اسپورٹس میٹیریل تقسیم کیا. رکن اسمبلی نے بتایا کہ اسپورٹس میٹیریل میں کرکٹ کٹس، فٹ بال، کراٹے کٹس، والی بال، کیرم بورڈز، یوگا میٹس کے علاوہ دوسرا سامان تقسیم کیا گیا. مقامی نوجوانوں نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا. تلنگانہ کے سرسلہ میں سابق وزیر KTR کے کیمپ آفس کے پاس کانگریس اور BRS پارٹی کے کارکنوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی. بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی تصویر کو کانگریس کے کارکن کیمپ آفس کے پاس لگانا چاہتے تھے، لیکن BRS پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے اس پر اعتراض کیا گیا. اس دوران پولیس کی طرف سے ہلکی طاقت کا استعمال کیا گیا. بعض کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا. نہرو زولوجیکل پارک کا 25ویں بروز اتوار کو 24,000 افراد نے مشاہدہ کیا. اسے جاریہ گرمائی تعطیلات کی سب سے بڑی ریکارڈ تعداد بتائی گئی. زو پارک 1963 میں قائم ہوا تھا اور ابھی بھی یہاں پر 2,200 سے زیادہ جانور بتائے گئے ہیں. نہ صرف حیدرآباد بلکہ آس پاس کے اضلاع اور دیگر ریاستوں سے بھی عوام نے زو کا مشاہدہ کیا ہے.
सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और रैबिट्स पुलिस ने जगदीश मार्केट में एप्पल मोबाइल फोन के नकली एक्सेसरीज फरोख्त करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि विक्रम सिंह, सुरेश कुमार, नाथराम चौधरी और सरफराज एप्पल का लेबल लगाकर मोबाइल एक्सेसरीज फरोख्त कर रहे थे। मुसद्दका इत्तला मिलने पर पुलिस ने धावा करते हुए 1 करोड़ 1 लाख रुपए मालियत के नकली अशिया को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि धावे के दौरान 156 एयरपॉड, 16 पावर बैंक, 430 लोगो स्टिकर, 295 अडॉप्टर, 61 USB केबल, 47 बैटरीज, 95 बैक ग्लास और 1403 सिलिकॉन बैक कवर्स को जब्त किया गया। मरहूम भाई की यतीम व यसीर 3 लड़कियों की कफालत करने वाले दूसरे भाई के 2 लड़कों ने इनमें 2 लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल किया। अपने लड़कों की शर्मनाक हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश के दौरान इन लड़कियों ने किसी न किसी तरह समाज के जिम्मेदारों और पुलिस को इससे आगाह किया। हुसैन आलम पुलिस ने हरकत में आते हुए मुकदमा दर्ज किया, खातियों को हिरासत में ले लिया। लड़कियों को मेडिकल जांच करवाकर उन्हें भरोसा सेंटर रवाना किया गया। शाहगंज हुसैन आलम के साकिन मिनहाज कुरैशी, उनकी अहलिया, उनके वालिदैन, इस तरह खानदान के 6 अफराद कोविड-19 के दौरान एक के बाद दीगर इंतकाल कर गए। मिनहाज कुरैशी के भाई मोइस कुरैशी ने अपने मरहूम भाई की यतीम व यसीर 3 लड़कियों की कफालत कबूल की। गुज़िश्ता 4 साल के दौरान इन लड़कियों से घरेलू सतह पर नारवा सलूक किया जाता रहा। इस दौरान मोइस कुरैशी, जिनकी हड्डियों का कारोबार है, उनके 2 लड़के बिलाल कुरैशी, फैज कुरैशी ने अपनी ताज़ा 3 बहनों में से 2 का जिनसी इस्तेसाल शुरू किया। इस बात से मोइस कुरैशी और उनकी अहलिया वाकिफ थे। बताया जाता है कि बात आगे बढ़ गई तो उन्हें लड़कियों का हमल भी साकित करवा दिया। बात को छुपाने वो इन लड़कियों की कफालत उनकी बाहयास मोहतरम मां के हवाले करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान 2 लड़कियों ने हिम्मत जुटाकर समाज के चंद जिम्मेदार और पुलिस को उसकी इत्तला दे दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोइस कुरैशी, उनकी अहलिया और खाती 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े के मंज़र-ए-आम पर आते ही जमीयतुल खुरैश हैदराबाद ने हंगामी इजलास तलब करते हुए मोइस कुरैशी के समाजी व माशी बाइकॉट का ऐलान किया। बरादरी से कहा गया कि वो उनसे कोई राब्ता न रखें। इस बाइकॉट की कारोबारी बरादरी सतह पर तशहीर करने का फैसला लिया गया। जमीयतुल खुरैश ने मुतासर लड़कियों की कफालत कबूल करने और उनकी मुमकिन मदद का अहद किया है। जमीयतुल खुरैश हैदराबाद के दफ्तर वाक़ शाहगंज पर खुरैश बरादरी और मुकामी अवाम ने एहतजाज करते हुए मोइस कुरैशी और उनके ख़ानदान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या हुआ हैदराबाद में, जिसका नोट लेते हुए शाहगंज मोहल्ले के तमाम मोहल्ले वाले और जमीयतुल खुरैश हैदराबाद के ज़िम्मेदारों ने आज मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये तय पाया है कि मोइज़ुद्दीन कुरैशी का किस तरीके से समाजी बाइकाट किया जाए। तो हम तमाम बरादरान खुरैश से अपील करते हैं कि मोइज़ुद्दीन कुरैशी से कोई भी कारोबार, कोई भी मामलात ना रखे, कोई दावत ना उनकी दे, ना उनको देना चाहिए, ना उनकी दावत कबूल करना चाहिए। काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने बैन रियासती एक सारिक को गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस ने मीडिया को बताया कि हरियाणा के रहने वाले नवनीत शर्मा को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इमलीबंद बस स्टेशन के पास मुश्तबा हालत में घूम रहा था। पुलिस ने तफ्तीश की तो एक चोर निकला। मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसने रियासत आंध्र प्रदेश में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सफ़र के दौरान कोच नंबर A1 से एक बैग को उस वक्त सरका किया जब उसका मुसाफिर हालत नींद में था। रेलवे पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक लैपटॉप, एक एप्पल आईपैड और एक मोबाइल फ़ोन के अलावा दूसरी अशिया को जब्त कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट
बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। खिदमात पर फौत होने वाले बरकी मुलाजमीन के लिए हादसाती इंश्योरेंस स्कीम का नायब वजीर आला ने किया आगाज। कहा, मुल्क की वाहिद रियासत का तारीखी कारनामा। मानसून मुकर्ररा वक्त से पहले तेलंगाना पहुंच गया। पीर को पहली बारिश, जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म। वक्फ कानून के खिलाफ महबूबनगर में एहतजाजी जलसे-ए-आम। खराब मौसम के बावजूद हजारों अफराद की शिरकत। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अबू तालिब रहमानी, सीएम इब्राहिम, अहमद बलाला और दीगर के खिताबात। जगदीश मार्केट में एप्पल मोबाइल फोन के नकली एक्सेसरीज का रैकेट बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार। 1 करोड़ 1 लाख रुपए मालियत की अशिया जब्त। और यतीम और यसीर लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल, शाहगंज में वाक़या। खाती खानदान का समाजी और माशी बाइकआउट करने जमीयतुल कुरैश का ऐलान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।